پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند خدا کے نام کی حمد اور ستائش اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، کیونکہ اسی کے مبارک اور جلالی نام میں آج شب پھر سے آپ تمام مقدسین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ خدا کے لوگوں، آپ نے جو دعائیں کی ہیں، پرستش کی ہے ہماری اسکائپ آئی ڈی پر، میٹنگ کے پریزائڈ کیے جانے کے وسیلہ سے بھی میں نے خوب برکت پائی، اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس کے عوض آپ کو دوگنی چوگنی برکت بخش کر اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ خداوند اسی طرح آپ کو استعمال کرے، میں یوں کہوں گا خداوند اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کو استعمال اور خرچ فرمائے، اور آپ کی خدمات کی حدود اور زیادہ وسیع تر ہوتی چلی جائے۔ آج آپ کے ساتھ مل کر میں خداوند کے مقدس کلام سے زبور کی کتاب سے سیکھنے کو ہوں، اور آج میرے سامنے زبور 147 ہے، جس سے میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ یاد رہے کہ اس پورے زبور کا جو مضمون ہے یا مرکزی خیال ہے وہ ہے خداوند کی حمد کرو۔ اور جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے کہ یہ زبور 147 کی بات کر رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ زبور 146، 147، 148، 149 اور 150 پانچویں کتاب زبور کی، اور یہ آخری 5 مزامیر ہیں، گیت ہیں جو خداوند کی حمد میں گائے جاتے رہے۔ اور یہ پانچوں کے پانچوں گیت یا مزامیر ایسے ہیں، آپ کے پاس بائبل ہوگی، بائی دا وے ہونی تو چاہیے۔ 146 کے شروع میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے خداوند کی حمد کرو، اور 146 کے اینڈ پر خداوند کی حمد کرو۔ 147 کے شروع میں خداوند کی حمد کرو، اور اس کے اختتام پر بھی خداوند کی حمد کرو۔ اسی طرح 148، 149 اور 150 شروع بھی خداوند کی حمد کرو سے ہوتا ہے، اور ان مزامیر کا اختتام بھی خداوند کی حمد ہی سے ہوتا ہے۔ یہ خداوند کی شفقت اور اس کی مہربانی اور اس کے رحم اور اس کے کرم کو یاد کرتے ہوئے زبور نویس خدا کے جلال کے لیے ان گیتوں کو لکھتا ہے، جو بنی اسرائیل خانہ خدا میں بھی گایا کرتے تھے، اپنی عبادت گاہوں میں بھی گایا کرتے تھے، اور خدا کرے کہ میں اور آپ بھی جب شخصی طور پر خداوند کی پرستش کرتے ہیں، اجتماعی طور پر تو کرتے ہی ہیں، لیکن شخصی طور پر بھی ہم خداوند کے حضور اس کے ان عجیب کاموں کا اور عظیم کاموں کا ذکر، حمد اور ستائش اور پرستش کے ذریعہ اپنی زبان سے کرتے رہیں۔ چونکہ ہم زبور 147 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے 3 حصص ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ تو 1 سے 6 آیت تک ہے، خداوند کی حمد ہی
का यह हिस्सा है। और फिर 7वीं आयत से फिर से खुदावंद की तारीफ करने के साथ दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो 11 आयत तक है। और फिर उसके बाद 12वीं आयत से फिर से खुदावंद की सताइश के साथ आगाज होता है और 20 आयत तक चलता है और खुदावंद की हम्द करो के साथ यह जबूर मुकम्मल होता है। अब 147 जबूर की पहली आयत सुनिएगा कान लगाकर। और मैं अक्सर कहता हूं, खुदारा अपनी तवज्जो किसी और तरफ नहीं जाने दीजिए। लिखा है खुदावंद की हम्द करो, यहोवा की हम्द करो। और आगे लिखा है कि क्यों हम्द करो भाई? क्योंकि खुदा की मदा सराई करना भला है, इसलिए कि यह दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। ज़बूर नवीस इस बात का इजहार करता है कि खुदावंद की हम्द करो। हम्द से मुराद खुदावंद की तारीफ, सताइश, आराधना, स्तुति, उसको जय जयकार कहना, प्रेज जिसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसकी हम्द करो, उसकी तारीफ करो। और यूं लगता है कि जब वो कहता है खुदावंद की हम्द करो, तो इसमें गोया वो अपने साथ उस वक्त के लोगों को भी कह रहा था कि मेरे साथ शामिल हो जाओ। और आज मुझे और आपको यह कहता है खुदावंद की हम्द करो, शामिल हो जाओ मेरे साथ, और खुदावंद की हम्द करो, मेरे साथ मिलकर उसकी तारीफ और उसकी सताइश करो। यहोवा के नाम को मुबारक कहो और उसके नाम को जय जयकार कहो। और फिर वो बताता भी है कि क्यों उसकी हम्द और उसकी सताइश करो। इसकी एक वजह यह, क्योंकि खुदा की मदा सराई करना भला है। हम्द और मदा सराई दो मुख्तलिफ अल्फाज जरूर हैं, लेकिन इनके जो माना है वो एक ही है। उर्दू अदब के एतबार से मदा सराई ये जरा और ऊंचा लफ्ज है। मदा सराई करना, हम्द करना, सताइश करना। और एक और बात भी कि जो लफ्ज हम्द के लिए इस्तेमाल हुआ है या मदा सराई के लिए इस्तेमाल हुआ है, इवन जो उर्दू में भी हमारे पास हम्द या मदा सराई के अल्फाज हैं, ये किसी बशर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। जैसे किसी को कहा जाए, ओ जी मैं आपकी हम्द करता हूं, नो। या जी आपकी क्या बात है जी, मैं आपकी मदा सराई करता हूं, नहीं 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 नहीं। ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ खालिके कायनात यहोवा खुदा के हुजूर ही कहे जा सकते हैं। यूं कह देना चाहिए कि ये जो अल्फाज हैं, ये ऐसे मुकद्दस अल्फाज हैं जो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं जो खुद कुद्दूस खुदा है, जिसकी कुद्दूसियत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो क्यों करो जी उसकी हम्द और उसकी सताइश? एक तो यह कि वो इस लायक है कि उसकी हम्द और सताइश की जाए। क्यों इस लायक है?
इस पर हम बात करते हैं। और दूसरी बात ज़बूर नवीस कहता है, क्योंकि हमद करना, मदासराई करना भला है, यानी अच्छा है, खूब est, यानी ये अच्छी बात है कि आप खुदावंद की हमद करें। और फिर इसलिए भी कि ये दिल पसंद और स्ताइश ज़ेबा है। इसका जू माना है, एक तो ये, बाय द वे, हम जितने भी जो खुदावंद की स्ताइश और हमद करने वाले हैं, हमें अपने बारे में मालूम है कि हम कितना अच्छा गाते हैं। हमें मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। और बाजों का हमें यूं लगता है कि नहीं, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं कि मैं जमात में गा सकूं, नहीं, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोचते हैं ना। शायद बहुत सारे ऐसे इस वक्त ऑनलाइन मेरे साथ इस ऑनलाइन फेलोशिप में शरीक होंगे जो शायद ये बात सुनकर अपने आप में महसूस करते हो कि हां, मैं ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हमारी आवाज खा कैसी ही क्यों ना हो, एक तो यह है कि मुझे खुद तो भली लगती है ना, मेरी आवाज मुझे खुद तो भली लगती है ना, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है। और नंबर 2, जो स्ताइश और परस्तिश और मैदा सराई हम करते हैं, वो खुदा के लिए करते हैं, किसी बशर के लिए नहीं करते। कोई बंदा हमें कोई सेहरा दे, अजर दे, कप दे या ना दे, डजंट मैटर। खुदा के पास अजर है इस सताइश और इस परस्तिश का, जो खुदा के हुजूर मैं और आप बाहम मिलकर करते हैं। यह एक अहम तरीन हकीकत और सदाकत है जो खुदा के कलाम में हम देखते हैं। आपको याद है, एक दफा मैंने यह कहा था कि जब छोटा बच्चा, शायद अभी उसकी आंखें खुली और हाथों से इशारे ही करता है, मैंने 2 पाले हैं इसलिए मुझे पता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब कोई मुंह से वो अल्फाज निकालता है या थोड़ा और जब बड़ा होता है, वो ही हा हु ही करता है, तो फौरन उसके पेरेंट्स पहचान जाते हैं कि वेखिया जे हुन ए कहंदा है। फिर दोनों खुश होते हैं कि हुन गल्लां करन लग पिया है। ऑफ कोर्स, अगरचे उसके अल्फाज क्लियर नहीं है कि वो क्या कह रहा है या कह रही है, लेकिन हम जो पेरेंट्स हैं, हम अपने ज़हन में गैस करते रहते हैं, इसने कहा है मामा, पापा, और फिर हम आइडियाज लगाते रहते हैं। खुदा के लोगों, अगर हम बशर होते हुए, इंसान होते हुए अपने बच्चों की आवाज को भांप लेते हैं कि वो क्या कह रहा है, इवन जब वो रो रहा हो, हम सोचते हैं उसको भूख लगी है या नैपीज का कोई प्रॉब्लम है, हम फौरन समझ जाते हैं। तो फिर आसमानी बाप का क्या कहना, वो हमारी परस्तिश, हमारी आवाज को पसंद करता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इस बात को कि हम परफॉर्मेंस के लिए गाते हैं या रूह और सच्चाई से खुदा के नाम को ऊंचा और ज्यादा सरबुलंद करने के लिए। खुदा को परफॉर्मेंस करने वालों की जरूरत नहीं है।
खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी परस्तश पर वो तख्त नशीन हो। तो सोचना है कि मैं जो परस्तश करता हूं वो कैसी है, किसी को भली लगती है या नहीं, मुझे तो लगती है ना, और मैं किस रूह से वो परस्तश और स्ताइश करता हूं। और साथ साथ जबूर नवीस कहता है ये दिल पसंद है, दिल को अच्छी लगने वाली, और स्ताइश ज़ेबा है, यानी खूबसूरत लगती है जब हम खुदावंद की तारीफ और उसकी स्ताइश करते हैं। तो एक तजर्बा करके देख लीजिए, और माजी में आपको कई दफा तजर्बा भी हुआ होगा कि जब आप कुछ बुझे बुझे हो, कभी बुझे बुझे होते हैं, ऑफ कोर्स, कभी कभी हम बुझे बुझे होते हैं, जी नहीं करता कुछ काम करने का, किसी से बात करने का। शायद कई रीजन हो सकते हैं, ज़हनी तौर पर कोई दबाव, कोई बोझ, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई बीमारी, पॉसिबल है, यह मुमकिन है। लेकिन अगर आइंदा के लिए यह फार्मूला इख्तियार करें कि जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो फौरन खुदा के कलाम को खोल लीजिए, और खासकर उन मजामीर को जो हमारे पास मंजूम कलाम की सूरत में मौजूद हैं। सियालकोट कन्वेंशन, तमजीद मसीहा, सयून के गीत और बहुत सारी और कुतुब हमारे पास मौजूद है। आप किसी भी जबूर को निकाल कर गाना शुरू कर दें, किसी गीत को गाना शुरू कर दें, मैं गारंटी से कहूंगा आपके चेहरे पर खुशी, रौनक, मुस्कुराहट आएगी, और चंद मिनट पहले जो आपका चेहरा लटका हुआ था अब वो लटका हुआ नहीं होगा, बल्कि स्माइल होगी और शादमानी होगी। इसका एक रीजन ये भी है कि इसका हमारी सेहत से भी ताल्लुक है। जब हम गाते हैं तो हमारे हार्ट, हमारे दिल से भी इसका ताल्लुक है। ये दिल पसंद है खुदा को भी और हमें भी, और बड़ी अच्छी लगती है स्ताइश जो हम करते हैं, करने वाले को भी और वो जो सुन रहा है उसको भी भली लगती है। हम इसके लिए खुदावंद की तारीफ और स्ताइश करते हैं। मैं चंद एक ऐसे बच्चों की बाबत जानता हूं जिनके लिए दुआया दरखास्तें मिली। ये आज की बात नहीं है, माजी के कई सालों में मुख्तलिफ अदवार में ये दरखास्तें मिलती चली आई। और वो दरखास्त क्या है कि जी हमारा बच्चा अभी 5 साल का, 7 साल का, 9 साल का हो गया, समझता सब कुछ है, एक्टिविटीज काफी तेज तराज एक्टिव है, लेकिन वो बोलता नहीं है, बात नहीं करता। मां बाप परेशान, और वो मुख्तलिफ मेडिकल की हेल्प भी लेते हैं और खुदा के लोगों को दुआ के लिए भी कहते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं। जब मैं और आप खुदावन के हुजूर दुआ नहीं करते, हम्द नहीं करते, स्ताइश नहीं करते, परस्तश नहीं करते, तो खुदा बाप ये सोचता होगा कि नहीं कि मेरे काके ते मेरे काकी नू की हो गया, इस स्ताइश का दिल ही नहीं करता, क्यों मेरी तारीफ में इसकी जुबान खुलती नहीं है। दुआ की जरूरत है खुदावन, मेरे लिप्स पर, मेरे मुंह पर लगे हुए कुफल यानी ताले खुल जाएं यीशु के नाम से, ताकि मैं अपने खुदावन की हम्द और खुदावन की स्ताइश करने वाला हूं। आयत नंबर 2, खुदावन
यरूशलेम को तामीर करता है। याद रखिए, भूलिएगा नहीं कि वो कह रहा है खुदावंद की हम्द करो। अब दूसरी आयत में इसलिए कि खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है, वो इसराइल के जलावतनों को जमा करता है। एक दफा फिर कहता चलो, जो पहले किसी वक्त मैंने कहा था कि जब इसराइल की सल्तनत दो हिस्स में मुनकसम हुई, शुमाली सल्तनत इसराइल कहलाई और जनूबी यहूदा। अपनी नाफरमानियों के सबब से शुमाली सल्तनत असीर होकर असूर ले जाई गई और जनूबी सल्तनत असीर होकर बाबल ले जाई गई नबूकदनेस्सर के वक्त। लेकिन उसके बाद मैं किताब मुकद्दस के मुताबिक देखता हूं कि जरब्बाबिल और नेहमिया और अज़रा काहिन, ये वो लोग थे, ये वो लीडर्स थे जिनके जरिया से खुदा अब असीराने इसराइल को जो बाबल और असूर में थे उनको वो वापस यरूशलेम ला रहा था, काफिलों की सूरत में, एक टाइम पीरियड के बाद दूसरा और फिर तीसरा। और जब वो वापस आए तो शहरे यरूशलेम मस्मार, कुछ नामो निशान तक नहीं, हैकल का भी वजूद नहीं। जैसे इसराइल की हशमत जाती रही, प्रेजेंट दौर में मिसाल देता हूं, हमारे यूक्रेन के भाई और बहनें जो यहां मगरब में असीर होकर तो नहीं, लेकिन मुल्क बदर हुए हैं। अगर कुछ वक्त के बाद वो वापस जाते हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट वहां पर नहीं, और जब जाते हैं तो वो क्या देखेंगे, आप खुद सोच लें। ये असीर जब काफिलों की सूरत में वापस आते हैं, मास व खंडरात और ढेरों के, और इनको कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन खुदा ने वादा भी किया था हिजकिय्याल 37 में भी कि मैं ऐसा करूंगा, हड्डियों में जान डालूंगा। लेकिन यहां जबूर नवीस कहता है, इसलिए खुदा की तारीफ करो क्योंकि खुदा यरूशलेम को तामीर करता है, फिर से एस्टेब्लिश, और हुआ है दोबारा से वो एस्टेब्लिश यहां यरूशलेम की फलाह के लिए, उसकी आबादकारी के लिए, उसकी फिर से तामीर के लिए। खुदावंद की हम्द करो क्यों कि वो इसराइल के जलावतनों को, जो जलावतन किए गए थे, असीर हो गए थे, अब उनको जमा करता है और वापस लाता है। इस बात को जरा समझने की जरूरत है। इसलिए खुदावंद की सताइश करो, हम्द करो, क्योंकि वो भला है, दिल पसंद भी है, उसकी सताइश करना ज़ेबा भी है, हमारे लिए भी अच्छा और उसके लिए भला है, उसे पसंद है। इसलिए भी कि खुदा यरूशलेम को फिर से तामीर करता है, एस्टेब्लिश करता है, बहाल करता है, और इसराइल जो असीर होकर गया हुआ था उसको अब वो वापस जमा करता है। इसके लिए खुदावंद की सताइश करो और खुदावंद की तारीफ करो। मैं यहां पर यह भी बात करूंगा कि अगरचे ये
اسرائیل کی بحالی کی بات ہو رہی ہے. نافرمانی یا کسی بھی سبب سے ان کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا. ان کا کیریئر، فیوچر، مستقبل کچھ نظر نہیں آتا تھا. نا امید، ماسوا آنسوؤں کے شاید کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. کوئی سیل فون وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا، کوئی میڈیا الیکٹرانک، نتھنگ. آج کے زمانے کا نوجوان سوچتا ہوگا پھر گزارا کیویں کر دے سن. سوچنے کی بات ہے نا. کچھ بھی نہیں، اور انتہائی مایوسی کے عالم ہے. میرے بھائی اور میری بہن، آپ جو میرے ساتھ اس وقت آن لائن اس بائبل سٹڈی میں شریک ہے، خداوند آپ کو ڈھیروں برکت عنایت فرمائے. لیکن توجہ دیجئے گا، شاید آپ کی اپنی شخصی زندگی میں آپ کا یروشلیم جو سب کچھ ہے آپ کو نابود ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. کوئی امید کی کرن شاید وہاں پر نظر نہ ہو آتی ہو. شاید خاندان کے مختلف افراد باغیانہ پن کے شکار ہو گئے ہیں. بیٹے اور بیٹیاں مصرف ہو چکے ہیں، سوروں کی پھلیاں کھا رہے ہیں. روتے اور آپ تڑپتے ہیں، سوچتے ہیں ہے کوئی امید. آف کورس امید ہے. خداوند خدا، یہوہ پاک خدا آپ کے اس مسمار یروشلیم کو پھر سے بحال کرنا چاہتا ہے. جلا وطن آپ کے خاندان کے اسرائیلی یعنی بیٹے اور بیٹیوں کو واپس لانا چاہتا ہے. ابلیس ان کو اسیر کر کے لے گیا. نشے کی لعنت نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے. غیر قوموں کے شکنجے میں وہ پھنس گئے ہیں، دور چلے گئے. لیکن خدا باپ آپ کی آہوں اور سسکیوں کو اور آپ کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے. مایوس نہ ہوں، اپنی لائن خداوند خدا کے ساتھ استوار اور سیدھی رکھیں. پھر دیکھیں کہ خدا کس طرح معجزات کرتا ہے، اور جہاں کہیں آپ کا مصرف ہے خدا وہاں ہی اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اسے ہم کلام ہوگا، اور اس کو یاد آئے گا کہ میرے باپ کے گھر میں کتنی آسائش تھی اور آج میں کہاں ہوں. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ خدا آپ کے ایمان کا امتحان لے رہا ہو. ایک وقت کے بعد اسرائیل واپس آئے گا اور یروشلیم بحال ہوگا. آپ پریشان نہ ہوں میرے بھائی، میری بہن. خداوند نے تیرے آنسوؤں کو دیکھ لیا ہے، وہ حالات کو بدل دے گا. یہ کلام کا فیصلہ ہے. میں ایک اور بات یہاں دیکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ ایک مستقبل کے بارے میں ایک نبوت بھی ہے کہ خدا اسرائیل کو واپس لائے گا اور یروشلیم کو قائم کرے گا. اس وقت میں ہر منڈے کے دن
मुकाशफा की किताब की स्टडी ऑनलाइन करता हूं। 5 से ज्यादा साल हो गए रेगुलर स्टडी कर रहा हूं और टीच करता हूं। अभी मैं 21 बाब की आखिरी 2 आयात को खुदा ने मौका दिया तो अगले मंडे को कवर करूंगा। जैसे आज मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलता हूं। और बाय द वे ये तमाम स्टडीज मुकाशफा की मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद हैं, यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। लेकिन खैर, जब मैं 21 और 22 बाब का बतालिया कर रहा हूं, अभी तो 21 बाब में हूं, 22 पर खुदावन ने मौका दिया तो जाऊंगा। ये उस नए यरूशलेम के क़याम के बारे में बात हो रही है 21 और 22 में कि वो कितना खूबसूरत होगा, कैसे खुदा उसको बनाएगा और एस्टेब्लिश करेगा। यीशु ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और ये गोया उस नए यरूशलेम से मुताल्लिक भी इशारा है, नबुवती रूह में। और फिर बनी इसराइल खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस कदमों में आने के लिए भी ये बात है कि वो जला वतनों को जमा करता है। जिस्मानी बात भी थी जिस पर हमने बात की, और रूहानी पहलू भी है। खुदा मेरे और आपके इसराइल को भी वापस बहाल करने के लिए तैयार है। आयत नंबर 3, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है, वो उनके जख्म बांधता है। शिकस्ता दिल से मुराद वो जिनके दिल टूट चुके हैं। और चूंकि उनके दिल टूटे हुए हैं और शायद कई घाव, कई जख्म उनको लगे हुए हैं, तो खुदावंद ही उनके उन टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ता है और फिर उनके जख्मों को बांधता है। ये मुस्तकबिल के लिए बात नहीं है, बल्कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है कि इस वक्त भी खुदावंद खुदा ऐसा करते हैं कि वो आज भी जिनके दिल टूटे हुए हैं उनके दिलों को जोड़ते हैं, और जिनको मुख्तलिफ जख्म लगे हुए हैं उनके जख्मों को वो बांधते हैं। खुदा हम यहां पर देखते हैं कि सिर्फ यरूशलेम को तामीर ही नहीं करता, इसराइल को वापस ही नहीं लाता, बल्कि उसके जो बासी है, लोग हैं, उनके टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ता भी है और उनके जख्मों को वो बांधता भी है। मगरब में एक बात नजर आई जो हमारे मुल्कों में अक्सर नजर नहीं आती ईस्टर्न कल्चर में, और वो बात ये कि अगर किसी जानवर को, खा वो कुत्ता हो या बिल्ली या भेड़ हो या कोई भी, अगर कोई हादसा पेश आ जाए और उसकी टांग टूट जाए उस जानवर की, तो ये लोग बच्चों की तरह उनकी केयर करते हैं, उनके जख्मों को बांधते हैं। खुद नहीं, मेडिकल डॉक्टर्स वेटनरी हॉस्पिटल्स में उनको लेकर जाते हैं। जानवरों की इंश्योरेंस होती है, वो उनका ख्याल रखते हैं। और इससे और बेहतर तरीका से एग्जाम्पल हमें मिलती है कि जैसे चरवाहा अपनी भेड़ के जख्मों को बांधता है, बायन वैसे ही खुदावंद खुदा जो हमारा सबसे खूब और अच्छा चरवाहा है, वो हमारे
जख्मों को बांधता है, हमें शफा बख्शता है और हमें बहाल करता है। शायद बहुत सारे मेरे अजीज आज मेरे साथ ऑनलाइन हैं, वो किसी न किसी के डंगे हुए हैं, किसी न किसी ने डंग मारा है, जख्मी है, टूट चुके हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो डंगा हुआ ना हो। समझ रहे हैं डंगा हुआ से क्या मुराद है? खासकर इस जमाना में बहुत कुछ ऐसा नजर आता है। अपनी जिंदगी की बागडोर खालिके हकीकी के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि वो हमें शफा देता और हमारे जख्मों को बांधता है। आज के लिए चौथी आयत, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए, वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। वो सितारों को शुमार करता है, कितने सितारे हैं, और उन सब के नाम रखता है। मुझे याद आ रहा था खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता भी है और पुकारता भी है। खुदा जिसने सितारों को बनाया, अजराम फलक और निजाम शमसी की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कहकशाएं, शमसो कमर, मरीख, अतारद, जोहर वगैरह, खुदा ने उनको एक दूसरे से एक खास फासले पर रखा हुआ है, जो अपने अपने मदार में मसलसल घूमते हैं, जिम्मेदारी पूरी करते हैं और कोई भी अपने मदार से बाहर नहीं जाता, अपनी हद में रहता है। और अगर कोई बाहर निकल जाए तो निजाम शमसी, अजराम फलक का कला कमा हो जाए, ये दुनिया खत्म। दूसरी तरफ जो ये कहकशाएं हैं, सितारों का झुरमुट, इल्मे नजूम वाले ये बताते हैं, ये वो फालगिरों की बात नहीं करता हूं मैं, उनकी बात करता हूं जो फल्कियात के इल्म को जानते हैं। वो ये बताते हैं कि इन कहकशाओं के ऊपर और कहकशाएं हैं और उनके ऊपर और इंसान जितनी मर्जी रिसर्च और स्टडी कर ले, उसकी समझ में यह सब कुछ नहीं आ सकता। लेकिन देखिए जिसने उनको बनाया है, यहां वाजे तौर पर नजर आता है कि वो उन सितारों के नाम रखता है और उसने गिने हुए हैं कि कितने हैं। मुझे एक और बात याद आ रही थी, कुछ अरसा पहले मैंने एक कोटेशन कहीं पढ़ी और वो ये थी खुदा के बारे में कि खुदा हमें याद रखता है कि जब हम सुबह कंघी करते हैं और जितने बाल हमारे गिरते हैं ना, मेरे तो उंजी गिर गए, लेकिन जितने बाल गिरते हैं, चूंकि खुदा ने हमारे सर के बाल भी गिने हुए होते हैं और जब हम कंघी करते हैं बाल गिरते हैं, तो फिर हमारा जो अकाउंट है बालों का, खुदा उस अकाउंट के बारे में जानता है कि कितने गिरे और कितने बाकी है। खुदा जानता है सितारों के बारे में और उनके नामों से भी वो खूब वाकिफ है। हर एक के नाम से वो खूब वाकिफ है। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और जानता है, कैप्टन सिपाहियों को हुक्म देता है आप ये करो, वो लीड करता है और सिपाही वैसे ही करते हैं। ये अजराम फलक उस बड़े कैप्टन के सिपाही हैं
کہ جیسے وہ ان کو کہتا ہے ویسے ہی وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ نیکسٹ حصہ جو اس زبور کا ہے 5ویں آیت سے آنے والے کل خداوند کے ممسوح کے وسیلہ سے سیکھیں گے۔ آج ہم یہاں پر ٹھہرتے ہیں، لیکن کیا خداوند نے ہم سے کوئی بات کی ہے؟ کیا کی ہے؟ سوچئے اور غور کیجئے۔ میں آپ سب کے ساتھ مل کر چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا۔ جہاں کہیں ہے خداوند کے حضور عاجزی اختیار کر لیجئے۔ خداوند آپ کس قدر عظیم اور مہان ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ستائش اور پرستش کے گیتوں پر آپ اپنا تخت لگا لیتے ہیں۔ او خداوند آپ کی حمد اور آپ کی ستائش ہو۔ اور زبور نویس کی طرح ہم کبھی بھی اس بات کو نہ بھولیں کہ میرے یہوہ پاک خدا نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، اور ہم ان باتوں کو یاد رکھنے والے ہوں۔ اے خداوند اگر آج اس جماعت میں کوئی شکستہ دل ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی مصرف ہے، کوئی ایسا ہے جس نے آپ کو جانا نہیں، خداوند منت کرتا ہوں اے باپ اپنے بیٹے مسیح یسوع کی قدرت کے وسیلہ سے انہیں بحال کیجئے، ان کا یروشلیم بحال کیجئے، جلا وطنوں کو واپس گھر میں لائیے، اور ہر طرح کا بندھن یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے، زندہ مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سب کو آج اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ پھر ملیں گے، لیکن جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔